वाजिब की। Hello everyone, welcome to another video. Probably the most awaited video of 2025, but more certainly the most important video of this channel. I will request everyone to watch this video till the end, especially my audience. It's necessary. So, Mr. Hriday, let me make something very clear to you, bro, before I start this video. Consider this video be something like a senior giving wisdom to his junior. शक्ल से मैं तेरे को शायद उम्र में छोटा लगूं, but मैं तेरा 2 साल senior हूं. If you don't believe me, let me just say I know the exact reason कि तेरे हाथ में अभी तक तेरी कॉलेज की डिग्री क्यों नहीं आई है. 3 दिन पहले तेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन था ना, जिस दिन तू घर पे बैठ के मेरे को स्टोरियों पे टैग कर रहा था. मेक सेंस कि तू गया क्यों नहीं. अब तू समझ जा वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एंड लेट मी यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू री एजुकेट यू. फिर आप आगे जब इंस्टाग्राम पे ये सारी मॉरल पॉलिसिंग करते हो और बोलते हो कि पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो ना, इट साउंड्स वेरी फनी बिकॉज़ वी ऑल कैन सी हु नीड्स टू गो टू स्कूल अगेन. ऑल्सो आई एम गोना स्पीक हाउएवर आई फील कंफर्टेबल इन दिस वीडियो. इट्स नॉट माय प्रॉब्लम इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. कॉन्टेक्स्ट. जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को शायद पता है मैं किस बारे में बात करने वाला हूं. जिन लोगों को नहीं पता है, लेट मी गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट. तो मैंने 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इन केस यू वांट टू वॉच इट, यू गाइस कैन वॉच इट. मैं पूरी क्लिप तो यहां यूज नहीं करूंगा. I'll use it in bits and parts to put my point forward. There is this creator on Instagram goes by the name Hriday. I'm sure तुम्हारे feed पे आया होगा ये नमूना. I wouldn't even call him a creator because honestly you haven't created shit. And let me just mention this, whatever you do on Instagram these days, Hriday, is what people used to do back in 2020 on YouTube. अगर तूने उस टाइम पे कभी YouTube खोला होगा then you would know what I'm talking about. Just because now you're doing it on another platform doesn't make it new. So basically Mr. Hriday makes content on female influencers, moral policing them, calling them out for their behavior basically. Awkward Goat हो गई, काजल हो गई, मुस्कान कारिया. This guy is obsessed with मुस्कान कारिया though. But here's the problem. According to him, he thinks he's calling out. But according to me, I think that's bullying and harassment. शुरुआत से लेके अभी तक. Since I have uploaded that reel on you, Hriday, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि bro, I support whatever Muskan does. You wanna call her out? Call her out. Matter of fact, a lot of people have called her out. I'm on that side. I don't support sexualizing content for views, engagement, money, because that does have a bad impact on the youth. ये चीज को मैंने उस reel में भी बोला था. Bro, I get your point. I'm myself against content that is being sexualized for views, engagement, sponsorships, money, whatever, because it has a bad impact on the youth. We all can agree to that. Clearly, पूरी तरीके से इग्नोर हो गया और आपकी जनता ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई आई वांट टू इंप्रेस फीमेल्स, आई वांट मुस्कान कारियाज अटैच. ना ब्रो, इस लॉजिक से तो आपके घरों में बहनें हैं, बहनें नहीं माँ तो होगी. आप कभी अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने जाओगे, विल यू बी डूइंग दैट फॉर फीमेल अटेंशन? ये कहना चाह रहे हो आप? ब्रो, मैं मुस्कान के ऊपर आपसे 1 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ. कोई बात नहीं, तुम लोग हो जाहिल, आई डोंट ब्लेम यू. बट मिस्टर हृदय, मैंने किस चीज के लिए कॉल आउट किया था तुझे, आज अब फिर से दिखाता हूँ. ब्रो, व्हेन यू बेस ऑफ योर एंटायर कंटेंट बाय बैशिंग दोस सेम सेट ऑफ क्रिएटर्स रिपीटेडली, यू आर नॉट फाइटिंग द प्रॉब्लम, यू आर प्रमोटिंग द प्रॉब्लम. ब्रो, you do realize, right, that everything that you're calling out in your reels is actually used as a hook in your reels. I specifically called you out for bashing the same set of female influencers repeatedly just for views. That's what you're doing. That's what your Instagram is all about. तूने किसी के ऊपर 1 रील बना दी, 2 रील बना दी, 3 रील बना दी, ठीक है. बट भाई तूने अपनी पूरी पर्सनैलिटी वही बना रखी है. आप खुद देखना चाहते हो, just go to his Instagram. You are going to find more than 15 reels on just Muskan Karia, which I pointed out in the reel I uploaded calling him out on my Instagram. इसमें सबसे ज्यादा नाम मुस्कान कारिया का यूज हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8. भाई तूने गलत गिना है. 20 रीलें बनाई है मैंने मुस्कान पे, 20 से भी ज्यादा, और 40 और आगे बनाऊंगा. 10 से ऊपर रील मिल जाएंगे आपको Awkward Goat के ऊपर. When you make 20 reels bashing a specific person, that shit over here is called harassment. It's not called calling someone out. समझ रहा है? जो चीज मैंने आपको डबल कोट मेंशन करके बोला था कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा हूं मैं तेरे कंटेंट को लेके. बट भाई जेन्युइनली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोल रहा हूं. हियर मी आउट. मेरी ऑडियंस जानती है ब्रो, आई हार्डली यूज दिस टर्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दो आई एम कंस्ट्रक्टिवली criticizing someone. I just feel there is no necessity to say. But तुझ जैसे गधे के लिए मेरे को वो चीज मेंशन करनी पड़ी and still it got ignored. Because तेरा ईगो इतना बड़ा है ना, you couldn't see anything in front of. और यही रीजन है ब्रो कि तेरे ऊपर आज ये वीडियो बन रही है. Yes, मैंने इसको उंगल करा, इसको कॉल आउट किया, कंस्ट्रक्टिवली कॉल आउट किया, और मैंने ये चीज इसीलिए करी क्योंकि कोई और कर नहीं रहा था. जबकि दिख सबको रहा था, दिक्कत सबको दिख रही थी, बस कोई इसलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि भाई nobody wanted to deal with the negativity of your cheap audience. Your audience is disgusting, man. What else do you expect when a creator is bashing women left and right? All he is doing by doing that is cultivating a bunch of fucking incels. An audience is a direct reflection of the creator, bro. मैं आप लोगों के सामने बस एक DM पढ़ूंगा from the thousands of DMs I have received just because I gave constructive criticism to this one douchebag. तेरी माँ की चूत में 100 आदमी अपना लड़ दिए होंगे. चूतिया साला, मुस्लिम मादर चौथ, फ्री पैलेस्टीन अपनी माँ की चूत में डालना, आतंकवादी साला, रंडी का बच्चा. भाई रंडी बुला दिया मेरे को. भाई #प्राउड रंडी गाइस. साला अपना मजहब में अपनी बहन के साथ शादी करते हो, शर्म नहीं आती क्या? लौड़े पैलेस्तीन में जितने भी लोग
तेरी माँ की चूत से निकले होंगे तो सोच कितने लोग तेरी माँ का चौदा होगा। तेरी शक्ल देखिए लौड़े, फटे हुए अबॉर्शन टेस्ट ट्यूब जैसा दिखता है, बड़ा आया रोस्ट करने वाला साला रंडीबाज। एक बार दिख जाएगा ना तेरी अम्मी चोद दूंगा। अब आप आइडिया लगा लो कि मैंने पिछले 48 घंटे में क्या क्या नहीं पढ़ा है, क्या क्या नहीं सुना है। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि दिस इज ऑल मेड अप, तो जो लिंक मैंने अपनी रील का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जाके उसका कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ना। तो जो मैंने आपको ये रील दिखाई, मैंने शाम को 6 बजे ऐसे करीब डाल दी, ठीक है। मिस्टर हृदय ने उस रील पे 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करके एक रील पोस्ट कर दी अपने पेज। मेरे व्यूज आ रहे हैं ब्रो। घर में दूध की कमी हो रही होगी, कंटेंट नहीं चल रहा ना, पैसे नहीं आ रहे होंगे। भाई घिसी पिटी स्क्रिप्ट जो लोग आके मेरे को 3 साल पहले बोलने की कोशिश कर रहे थे और दफना दिया इसी चैनल पे। ब्रदर ट्राई टू डू द सेम थिंग विद मी। चल ठीक है भाई, एक सेकंड बेवकूफ, सुन मेरी बात। अगर मुझे तुझसे व्यूज चाहिए होते तो तूने 1 घंटे में क्यों रिस्पॉन्ड कर दिया मुझे? डेस्परेट कौन लग रहा है, मैं या तू? शायद इसी डेस्परेशन की वजह से आपको ये भी नहीं दिख रहा कि आप कंटेंट के नाम पे किसी को हरास कर रहे हो। तूने भी तो मेरी रील भाई अपनी एंगेजमेंट के लिए लगाई है ना मेरे भाई। You see, when you're called out for something and you respond with shit like कि भाई के व्यूज नहीं आ रहे, भाई को मेरे नाम से व्यूज लेने हैं, भाई को मेरे नाम से घर चलाना है अपना, I just know कि भाई तू अपना दिमाग अपनी गांड में लेके घूमता है। You have missed the whole fucking point. तुम हो गधे, तुमने प्रूव कर दिया मेरे को ये। You see, I was trying to address how he is harassing women in the name of content. But what did Mr. Hriday make this about? Views. Wow. This is the most easiest way to manipulate an audience that cannot think for themselves to stand with you at the defense line. क्योंकि जिनके अंदर अकल है ना भाई, वो तुझे फॉलो नहीं करते, वो तेरी गंदगी दूर से देख के दूर रहते हैं। And this is not the first time, bro. This exactly is the problem. Nothing new is happening. यही same चिलगूजे उठ के आ जाएंगे, same script, same format, same template. Just they cannot take criticism. They cannot take criticism. They will go to any extent to defend their asses, but they just cannot accept where they're going wrong. That is the fucking problem with the whole content creation, I'd say, in India, and that is the reason why the scene is not growing or nobody is doing something new. वही दिखा दी ताकि तेरे को भी व्यूज आए। Oh, it's 2025 and you are not getting any views anymore ना। व्यूज नहीं आ रहे, ये व्यूज की बातें चोद रहा है मुझसे। पहली बार व्यूज आए हैं क्या भाई तुझे जिंदगी में? तेरे को व्यूज का इतना घमंड कैसे है ब्रो? द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू इन 2025 इज टू पुल व्यूज ऑन Instagram Reels. You wanna walk your talk? Come on to YouTube, dog. Try to fetch these numbers on YouTube. तेरी गांड फट जाएगी भाई। और सुन ले, जब तक तेरे चैनल पे आधे बिलियन बी फॉर अ बिच व्यूज नहीं आ जाए ना, मेरे सामने एंगेजमेंट और व्यूज के गीत मत गाइयो कभी, समझ रहा है? ओ नहीं, एक सेकंड मिस्टर हृदय, आपका तो YouTube चैनल था ना 2-3 साल पहले, शायद आप कंटेंट भी डाल रहे थे उस पे। क्यों शिफ्ट हो गए भाई आप Instagram पे? व्यूज नहीं आ रहे थे क्या? Let me tell you the next best platform for people like you, man. बहुत व्यूज आते हैं तुझ जैसे चुचुंदरों को वहां पे। ऐप स्टोर खोल, मैं स्पेलिंग बताता हूँ, MOJ। डाउनलोड इट, स्टार्ट डूइंग दिस शिट ओवर देयर, इट विल सूट यू, douchebag. खुद की पूरी दुकान दूसरों के नाम पे चल रही, लोडू मेरे को आके कह रहा कि भाई मैं व्यूज मांग। अबे जा, यू मेड इट अबाउट व्यूज। यहाँ पे भी तेरे को जवाब दे दिया, अब बोल। तो जो मेरे से व्यूज चाहिए, इनके नाम से व्यूज खींचोगे? कौन हो भाई आप, कौन हो? आई कैन नेम 50 क्रिएटर्स टॉप ऑफ माई हेड हु हैव 10 टाइम्स मोर एंगेजमेंट देन यू। मेरे को एंगेजमेंट पुल करना होता, मैं उनको कॉल आउट करता। तेरी जेन्युइनली मुझे हरकत खराब लगी, वो तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या गधे? मैं ट्रेंडिंग दिख रहा हूँ इस टाइम, तुमको उछालने की जरूरत पड़ रही है ट्रेंडिंग लोगों को। मैं ट्रेंडिंग हूँ, मैं ट्रेंड, ये कौन बोलता है ऐसे ब्रो? ऐसे कौन बात करता है ब्रो? मैं ट्रेंडिंग हूँ। फिर भाई वंशज फटा इस साल, कांग्रेचुलेशंस होमी, उसके पीछे पड़ गया। आपको एक डार्क कॉमेडी के बादशाह से मिलाता हूँ, डार्क कॉमेडी के बादशाह से। यार मम्मी पापा के साथ सही था। मतलब ये लोड़ू पूरी दुनिया भर के नाम से व्यूज कमा रहा और मुझे आके कह रहा अपनी रील में कि भाई मुझसे एंगेजमेंट लेने की। अबे वंशज ने अपनी मम्मी के ऊपर एक जोक क्रैक किया एक पॉडकास्ट में, उस पे ये बंदा कूद गया कि भाई कितने लोगों के माँ बाप नहीं है, उनसे जाके पूछो। टू विच आई वुड आल्सो लाइक टू से कि भाई इट्स सब्जेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दैट यूज एजी ह्यूमर और डार्क कॉमेडी, जैसे तू बोलता है देहातियों की तरह डार्क कॉमेडी। अ लॉट ऑफ पीपल यूज एजी ह्यूमर टू कोप अप विद द लॉस ऑफ समवन, मैन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमर। तुम जैसे लोगों को अगर समझ में नहीं आ रही हो तो तुम्हारी गलती, बिकॉज ह्यूमर इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। इमेजिन ब्रो गेटिंग moral policed over edgy humor in 2025. That has to be absurd. The only reason you had to give your 2 cents on Vanshaj was because Vanshaj was blowing up, because you wanted views from him. Who the fuck are you to say कि भाई कोई तुझसे engagement खींच रहा है जबकि तेरी पूरी दुकान with cheap customers is being run off by other people's names? आज के पॉइंट पे मैं मुस्कान कार्य को हटा दूं Instagram से, कौन है तू? अपनी रील में मैंने इस चीज को कॉल आउट करते हुए बोला कि भाई अगर तेरे को समझ में नहीं आती डार्क एजी ह्यूमर तो इग्नोर कर। To which he replies to me कि भाई आप भी तो मेरे रील्स को इग्नोर कर सकते थे ना अगर आपको पसंद नहीं आ रहा मैं मुस्कान के। अबे यार ये जाहिल आदमी भाई, ये कसम से भाई तुझे एडमिशन कैसे मिल गया कॉलेज में ब्रो? सिंपल है ना, जैसे मुझे डार्क ह्यूमर पर समझ नहीं आ रहा आपके हिसाब से, तो अगर आपको भी मेरी रील्स पसंद नहीं आ रही तो जस्ट इग्नोर इट ना ब्रो। अबे अनपढ़, किसी चीज को समझने में और पसंद करने में बहुत डिफरेंस होता है। क्या बोल रहा है? लॉजिकली बात करते हैं, ठीक है? आई एम गोइंग टू मोलेस्ट यू इंटेलेक्चुअली नाउ। गधे, मुझे एक बात बता, तू पहला प्राणी है जिसने मुस्कान कारिया को कॉल आउट किया है? भतेरों ने कर रखा है, बट तेरे बिहेवियर के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। दैट इज व्हाई आई हैड टू कॉल इट आउट। दिस वाज समथिंग दैट वाज बीइंग इग्नोर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बट इट गॉट कॉल्ड आउट बिकॉज इट वाजंट राइट। हर वो इंसान जहां से व्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दो रिपीटेडली, सेम फॉर्मेट में,
अनलिमिटेड व्यूज ग्लिच। मैं तो ट्रेंडिंग हूँ, सत्संग चल रहा है यहाँ पे, ये करवा लो इस झाटू से। बाकी घर आएगा तो मैं चाय भी पिला दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाय बना लूंगा मैं अपनी, नहीं मिलना, मैं नहीं बैठता हूँ आप जैसे लोगों के साथ, नहीं लगता हूँ मैं। वन बिग रीजन व्हाई आई नेवर रिप्लाई टू यू इन योर डीएम्स, बिकॉज़ यू वर फकिंग डेस्परेट। और पता है क्यों? बात करेंगे उस पर, रुक जाओ। नाउ कमिंग बैक टू माय रील, क्या उस रील में मैं तेरे धर्म पे गया? वाज आई बीइंग रेसिस्ट और सेक्सिस्ट और बॉडी शेमिंग यू और टॉकिंग अबाउट योर कास्ट, रिलीजन, व्हाटएवर? नहीं ना, बट योर ऑडियंस मेड एवरीथिंग अबाउट दैट। उसकी अकाउंटेबिलिटी कहां है? बताओ। है तेरे अंदर गोदा टू पुट अ स्टोरी कि भाई ये व्हाट द फक इज दिस, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये मेरी ऑडियंस नहीं कर सकती? कर सकता है तू ये चीज? नहीं कर सकता, क्योंकि तू बेंचो दिस गेम में सिर्फ व्यूज के लिए। सो नेक्स्ट टाइम थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू गो अहेड एंड से शिट लाइक कि भाई मेरे नाम से व्यूज लेना चाह रहा है, बिकॉज़ नोबडी एंड ट्राइंग टू डू दैट शिट। कल को आपका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ जाए, कौन से व्यूज, कौन सा एंगेजमेंट, कौन से ट्रेंडिंग लंड पे। एक तो मेरे बैनर्स, भाई यार मेरी किसी के साथ लड़ाई शुरू होती नहीं है, बैनर्स पहले मेरे डीएम में आके बजना शुरू हो जाते हैं। अजूज भाई आप बस बताओ, आप बस ग्रीन सिग्नल दो, अभी 2 मिनट में उड़ जाएगा अकाउंट। भाई ये सोल्यूशन थोड़ी ना है, किसी के पेट पे लात मार लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, ताकि ऐसा ना लगेगा आपको कि भाई मैं थ्रेट दे रहा हूँ आपको कि मैं आपका इंस्टाग्राम उड़ा दूंगा। मैं वो करने नहीं वाला, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। इतनी अकल है मेरे अंदर बाय द वे। हाँ, मे बी इफ आई वाज ऑपरेटिंग ऑन योर फ्रीक्वेंसी, शायद तेरा अकाउंट उड़ चुका हो, बिकॉज़ बात वहां पे ईगो पे आ जाती। वंशज को तो बहुत जल्दी कॉल आउट कर दिया भाई आपने, मम्मी के जोक पे। तेरी ऑडियंस जो माँ बहन कर रही है, आतंकवादी बुला रही है, जिहादी बुला रही है, फिलिस्तीन का हिजड़ा बुला रही है मेरे को, उसका क्या अकाउंटेबिलिटी? बहुत मॉरल पॉलिसिंग कर रही है, मॉरल पॉलिसिंग। मैं ट्रेंडिंग हूँ भाई। मैं एक और चीज बताऊं आपको मिस्टर हृदय, फन fact, I don't know if you remember Vanshaj as Captain India, but if there was something called Shipwreck still alive in YouTube India, तेरी मजाल है जो तू कुछ बोल पाता वंशज को। I dealt with a lot of racial slurs, Islamophobic slurs, abusive language, but I took one for the team because I had to call your bullshit out and bring out your fucking reality in front of people, bro. Because I don't care. Get fucked. और भाई इतना रेज बेट कोई इंसान आज तक नहीं देखा मैंने भाई, आज तक अपनी पूरी YouTube जर्नी हिस्ट्री, इंटरनेट हिस्ट्री पे मैंने आज तक किसी को इतना बुरा रेज बेट होते हुए नहीं देखा। ये बंदा चुप होके नहीं दे रहा, इस बंदे के अंदर सब्र नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि भाई एक रील डाल के मैंने एक मछली को तालाब से बाहर निकाल दिया, छटपटा रहा है, पागल हुए जा रहा है। कहीं से नंबर मिल जाए, बात हो जाए, चाय पी ले मेरे साथ भाई, नहीं जाना तेरे साथ डेट पे मेरे को गांडू। लेट्स वेंचर इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो गाइस। मिस्टर हृदय डज नॉट लाइक टू ओनली बुली women on the internet, he likes to bully kids as well. So there is this kid, I'm not gonna mention his name, face, I might even pitch correct his voice because he's scared man, he's scared। वो किस तरीके से मेरे आगे आके ओपन अप हुआ है ना, मैं जानता हूँ भाई। 19-20 years old, ventured into content creation, just घुसा था because he wanted to create content, do something for himself, right? So he started making content on Instagram, started reacting to stuff here and there, give his 2 cents about everything. Yeah, everyone can do that man, come on, everyone has freedom of speech, right? तो उस रील में उसने थोड़ी मस्ती कर दी, भाई ऑफेंड हो गए, बहुत ज्यादा ही ऑफेंड हो गए। इंटरेस्टिंग लो रहे, आओ तुम्हें थोड़े वॉइस नोट सुनाता हूँ उस बच्चे के। Why should we stop here? Let it all come out. पर एक वीडियो बनाई थी है ना, उसमें मैंने कुछ थप्पड़ इसको बोल दिया था कि भाई मैं थप्पड़ मारूंगा ये वो। तो फिर इसने वीडियो बनाई मेरे ऊपर, अब पता नहीं क्यों, लाइक क्योंकि इस बंदे ने ऐसे वो कर दिया था, लाइक तब मेरे अकाउंट में ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह भी नहीं थे, तो इसने पूरा वो कर दिया था कि इसको बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पता नहीं, मैं क्योंकि नया भी हूँ इंस्टाग्राम, लाइक सोशल मीडिया पे भी नया ही हूँ ना, इसने बेसिकली मैंने लाइक इसको डीएम किया था सामने से कि भाई भैया सॉरी ऐसा वैसा आपके ऊपर, ये क्योंकि मेरे को लग भी रहा था कि भाई मैंने मतलब रील में थपाड़ा बोल दिया, वो मैंने थोड़ा गलत लाइन कर दी, पर मैं डर रहा था बेसिकली, मेरे को डर लग गया था। सिंपल सी बात ऐसी थी, मैं बहुत डर गया था, मेरे को ऐसा लगा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये सब लोग मेरे को मारेंगे, दिल्ली बहुत छोटी जगह है, यही सब वहाँ रहते हैं, जैसे ही जाऊंगा वैसे ही पिटूंगा, ऐसा मेरे को बहुत लगा था। और ये लोग बात भी ऐसी कर रहे थे। ये मर्दानगी है भाई, मारना पीटना। लॉजिकली जब बात आती है तो जवाब नहीं होता, उस पे आ जाता है भाई कि व्यूज ले रहा, मैं ट्रेंडिंग हूँ, मुझे व्यूज मत लो, मैं ट्रेंडिंग हूँ। उसको डीएम के बार बार कॉल पे आने को बोला था कि कॉल पे आ, तू कॉल उठा, तू कहाँ रहता है, तू क्या करता है, वही वाली धमकियां जो होती है। क्यों कॉल पे बोला? ये सेम हरकत करने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ। उस पे रीच भी आ गई है, अब वो रील नहीं हटेगी। फिर मैंने बोला अरे यार, पर अब तुम मेरे को कोई मैटर तो नहीं कर दोगे ना यार। मतलब भाई वो तू देख ले भाई, मैं क्या बोलूँ, वो तू देख ले। तो बेसिकली धमकी टाइप की दे रहा था कि भाई लाइक मारेगा करके, है ना, जैसे अभी ये स्टोरी में कर रहा है कि भाई आ जाना भाई, मिल ले, ये जो हरकत कर रहा है ये। Exactly my point. रील तो डल गई है, एंगेजमेंट आ गई है, लोड़े को सिर्फ व्यूज से मतलब है। इवन इफ इट कॉस्ट समवन्स मेंटल हेल्थ, इवन इफ इट रूइंस समवन्स लाइफ, इट डजंट मैटर, क्योंकि भाई मुझे एंगेजमेंट चाहिए सिर्फ। आई एम ओनली हियर फॉर दिस। फक यू मैन। छी भाई। मतलब भाई वो तू देख ले भाई, मैं क्या बोलूँ, वो तू देख ले। वो तू देख ले। नो अकाउंटेबिलिटी ब्रो, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको कि ये बंदा अकाउंटेबिलिटी जब आती है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात जब आती है, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स, हाउ ही बिहेव्स। मैंने मना किया कि भाई मैं कोई अपॉलॉजी नहीं मिल रहा। फिर मेरे को इस बंदे का आया मैसेज, ये बंदा बोल रहा है भाई मैं तेरे को फॉलो कर लूंगा, हम सब सही हो जाएंगे भाई, मैं तेरे को बहुत सपोर्ट करूंगा, तू बस ऑकवर्ड वर्ड को रोस्ट कर दे। मैंने बोला यार, जो इंसान ने मेरी मदद करी है ना, उसकी मैं और मैंने कुछ मांगा भी नहीं था, बट वो इंसान आया और बस उस इंसान ने अपनी काइंडनेस दिखाई, तो मैं क्यों मतलब उसी इंसान पे अगले दिन ही रोस्ट कर दूं कि ये ले भाई। फेयर इनफ किड, फेयर इनफ।
क्योंकि ऑकवर्ड गोट ने इस बच्चे को सपोर्ट करते हुए एक स्टोरी डाल दी थी। तो ऑकवर्ड गोट ने मेरी कोई वीडियो थी उसको ऐसे स्टोरी पे पोस्ट करके लिख दिया कि भाई उसको समझ आ गया था कि हाँ यहाँ पे ये बकचोदी चल रही है, इसको थ्रेट किया, इसको ऐसे धमकियां दी जा रही है। तो ये बंदा बच्चे के साथ जाके फिक्स करने की कोशिश कर रहा और कह रहा कि भाई मैं तुझे बहुत सपोर्ट करूंगा अगर तू ऑकवर्ड गोट के ऊपर वीडियो भाई डेस्परेशन लेवल मैक्स मैन मैक्स। तो भाई नाउ इट मेक्स सेंस व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू बाय कॉलिंग मी, बाय टेलिंग मी टू हैव चाय विद हिम। दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जवाब तो इनसे इंटरनेट पे दिया नहीं गया। एंड डूड लेट मी जस्ट टेल यू दिस मिस्टर हृदय, व्हेन यू हैव टू रिजाइन टू योर फिजिकल स्ट्रेंथ टू विन एन आर्गुमेंट यू नो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। एक बच्चा ठीक है जो सिर्फ मस्ती कर रहा, भाई इतने ऑफेंड हो गए कि इन्होंने अपने दोस्तों से रील डलवा दी, उसकी आईडी मेंशन करके रील डाल दी हृदय भाई ने कि ये इसकी आईडी है, जाओ इसको पे लो, साइबर बुली करवा दिया, मेंटली उस बच्चे को हरास करा दिया। सेम जो मेरे को डीएम्स में आई हैं गालियां सेम उस बच्चे को पड़ी। और भाई वो बंदा भाई वो डर गया है ब्रो, वो डर गया, वो दिल्ली आने से डरता है। ये तो है भाई हमारे हृदय भाई, ये करते हैं मॉरल पॉलिसिंग इंटरनेट पे, लोगों को बुली कर करके। मैं ट्रेंडिंग हूं लंड पे बज। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू द वे ही एंड हिज फ्रेंड्स वर बुलिंग हिम। एक जेंजी का 14 मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को रोस्ट कर रहा है, उंगली कर रहा है, उसके अंदर हाथ देते हैं। चलिए भाई इनको बच्चों के अंदर हाथ डालने हैं, थपाड़ा दे भाई अपने आप के कानों में खींच के। क्या गलत है इसमें? एक थपाड़ा दे भाई अपने। इसने ये भी नहीं बोला कि मैं थपाड़ा मारूंगा, उसने बस बोला कि खुद अपना एक थपाड़ा दे अपने कान में, शायद थोड़ी जू रिंग जाए। क्या गलत? मस्ती ले रहा है एक बच्चा, मस्ती ले रहा है। ओ थपाड़ा एक सेकंड थपाड़ा होता है ये, इसे रैप्टा भी बोलते हैं। और ये है जितना तू पूरा है उतना। अगर ये लगता ना तो बंदा 7 रंग का मूतता है, और जो 7 रंग का तू मूतेगा उस 7 रंग के मूत को 7 अलग अलग डिब्बियों में स्टोर करियो, और जैसे हम में से किसी की भी तेरे पास रील आए वो डिब्बी उठाइयो एक और पी लियो। डिस्गस्टिंग भाई, आई कांट मैन, हाउ आर दीज पीपल। क्या देख रहे हो भाई तुम लोग? क्या हो गया कंटेंट क्रिएशन को भाई? व्हाट इज दिस ब्रो? हाउ आर यू प्राउड ऑफ दिस? इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तू ऑनलाइन क्या कर रहा है मुझे बता, बात कर ले भाई, मेरे से नंबर दे देता हूँ, कॉल पे बात कर ले। अब मैं तुम सबको इसका रीजन बताता हूँ कि ये भाई मेरे को डेट पे ले जाना क्यों चाह रहे, ताकि सारा मैटर दब जाए, इनकी बातें उछल के बाहर ना आए। और ये चीज मेरे को समझ आ गई थी इनके डेस्परेशन लेवल से कि ओ ब्रदर इज ट्राइंग टू कवर अप। वेल टू बैड मैन, टू बैड, वेलकम टू योर फ्यूनरल डॉग। थपाड़ा बोल दिया था बच्चे ने तो बहुत दिक्कत हो गई थी ना, मिर्ची लग गई थी, पड़ गया यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ा थपाड़ा। ये बजना चाहिए तेरे कान में जब जब तू रील बनाने बैठे। मतलब ये इतना डेस्परेट था कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स मेरे को फॉलो कर रहे थे उनको कॉल कर करके उनसे मेरा नंबर मांग रहा, जबकि मेरी उन इन्फ्लुएंसर से बात नहीं हुई कभी। मतलब स्टोरी पे मेंशन कर रहा, कॉल पे बात कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कमेंट कर रहा चलो चाय पी लेते हैं, फिर डीएम में आके चाय पीनी हो तो बताओ। अबे क्या ऑब्सेशन है? नहीं जाना मेरे को तेरे साथ डेट पे? क्या हो गया? वैलिड आंसर है मेरे पॉइंट्स के तो बोल, इंटरनेट पे बोलना, इंटरनेट पे कॉल आउट किया तुझे, ये क्या होता कि बाहर मिल? अबे भाग रहा है, जवाब है नहीं देने को, चाय पी लेते हैं, मैं ट्रेंडिंग हूं। दिस इज हाउ दे बुलीड अ 19-year-old kid. He is scared to step into Delhi. और ये जब चीज मेरे को पता चली ना कि ये सब हो रहा है, आई पोस्टेड अ स्टोरी सेइंग कि ये हृदय हैज बीन इन्वॉल्वड इनटू बुलिंग सम किड। यू नो व्हाट दिस गाय डिड? ही सेंट दैट स्टोरी टू द सेम किड ही बुलीड। क्यों भेजी तूने वो स्टोरी? क्या दिखाना, धमकाना चाह रहा था उसको? करके दिखा, तू करके दिखा ब्रो। अगर मैंने पूरी कम्युनिटी नहीं खड़ी कर दी तेरे अगेंस्ट, मेरा नाम अब्दुल नहीं, तू करके दिखा उसको परेशान। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड नाउ व्हाई दिस डूड वाज सो डेस्परेट इनटू कॉलिंग मी टू हैव अ चाय। ये बहुत डेस्परेट था भाई कि मैं इससे बात कर लूं, मैटर सॉल्व हो जाए किसी तरीके से, इनकी चीजें बाहर निकल के ना आए। पड़ गया थपाड़ा। क्यों नहीं बना रहे इसके दोस्त मेरे ऊपर? क्यों नहीं बना रहे रील? क्योंकि पता है ना मेरी पोजीशन क्या है। वो बच्चे की क्या पोजीशन थी? वो जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, ना फॉलोअर्स, ना कोई जान पहचान, ना कोई कॉन्टैक्ट्स, है ना? तो सोचा हम दबा देंगे। बट भाई इंटरनेट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मतलब बच्चों को बुली करने की बात होती है तो मर्दानगी निकल आती है, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को बैश करना होता है तो मर्दानगी निकल आती है। बट व्हेन अ मैन कॉल्स यू आउट टू द नो मैन्स लैंड, यू आर द फर्स्ट वन टू फकिंग क्राई ब्रो। वाओ मैन, एंड डोंट वरी ब्रो, आई विल कम टू गेट योर एस टिल आई एम हियर ब्रो। जब भाई ने रिस्पॉन्ड किया और ये सब बोला ना कि भाई मेरे से व्यूज लेने की कोई, तो आई अंडरस्टूड, क्योंकि बीन हियर फॉर 5 years मैन, आई नो हाउ टू रीड पीपल नाउ, राइट? सो आई अंडरस्टूड दैट आई हैव ऑलरेडी गॉटन अंडर स्किन। तो फिर मैंने इसको ट्रोल करते हुए, मैंने इसके ऊपर स्टोरीज डालना शुरू करी, इसको ट्रोल करते हुए, रेज बेट करते हुए, और ये होता गया भाई, ये रेज बेट होता गया, इसके अंदर चैन नहीं। मुझे पता था कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। 10-15 स्टोरीज डालने के बाद जनाब मेरे को मेंशन करते हैं स्टोरी में। उसके बाद से भाई वीडियो स्टोरी पे स्टोरी डाल रहा है भाई, इतना बावला कौन होता है? देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई तूने 15 स्टोरी डाल दी भाई, 15 स्टोरी डाल दी मेरे पे। वाह शैम्पी वाह, 15 स्टोरीज डाल दी तो चिर गई जनाब। यहाँ 50 रील डाल के बैठे हुए हैं किसी के ऊपर तो कुछ नहीं। बस इसी रीजन से मैंने स्टोरी स्पैम मारा था। कैसे गिनवा रहा बैठ के, 1 2 3 4, उसके बीच में एक मेरा गाना भी आ रखा है, गधे ने वो भी गिनवा दिया। भाई क्या पहले तो बड़े चौड़ में आए थे आपकी, क्या ब्रीज, क्या मैं तो 40 और डालूंगा, मेरा इंस्टाग्राम मैं जो भी डालूं। भाई तूने गलत गिना है, 20 रीलें बनाई है मैंने मुस्कान पे, 20 से भी ज्यादा, और 40 और आगे बनाऊंगा। मेरी मर्जी, मेरा
कंटेंट, मेरा फोन। भाई सेम चीज अप्लाइज टू मी ऑल्सो। मेरा इंस्टाग्राम, मैं 15 स्टोरीज डालूं 50 डालूं, मैंने तो 15 डाली। सिर्फ स्टोरी जो 24 घंटे के लिए रहती है मेरे फीड पे, आप तो 50-50 रील डाल रखे हो, तो आपको दिक्कत क्यों हो गई? क्यों गांव फक गई आपकी? चाय पीनी आपको? मैं ट्रेंडिंग हूँ। कहाँ चला गया वो? चाय पीते हैं, स्टोरीज डल रही हैं, चाय के इन्विटेशंस आ रहे हैं, लेकिन एक जवाब नहीं मिल रहा। बस व्यूज के नाम पे घटिया जोक्स, बिलो द बेल्ट मॉकरी, बॉडी शेमिंग एंड हरासमेंट। एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज दिस कल्टिवेटिंग? इंसेल्स। दिन भर लोगों को बैठ के बोलेगा कि तेरे शरीर में जान नहीं है, जिसमें शरीर में जान नहीं है। और भाई यहाँ तक अगर बात करी जाए तो कोई 45 रुपए भी ना दे आप, क्योंकि अगर यहाँ तक का सेटअप हो तो 45 रुपए भी ना दे कोई। यार जिम चला जा, तेरी छाती बन जाएगी। भाई मेरे को एक बात बताओ, आपका जिम जाने का फायदा क्या हुआ? इतनी मोटी चमड़ी स्टिल आई गॉट अंडर योर स्किन कि आप जाके फिर लास्ट में ऐसी स्टोरीज डाल लेते। ये कंट्रोवर्सी में अपना दिमाग पूरा खपा रहा था, टाइम वेस्ट किया था मैं। और आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी टाइम खराब मत करो किसी की कमेंट, किसी की पोस्ट पे जाके कमेंट करने का। शायद मैं उस लेवल तक नीचे गिर गया था गुस्से में कि हाँ मुझे गुस्सा आ गया, किसी ने मेरे पे वीडियो बना दी। आई लव माई इंस्टाग्राम फैमिली, आई एम सो सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। जवाब दे, जवाब, रोना बाद में। और जब इसी पे आना था तो ये चीज पहले भी हो सकती थी ना, जब आपको मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा था। वो जो ईगो मैंने देखा था पहली रील में आपका, 2 दिन के अंदर वो कहां गायब हो गया? क्या मैंने आपका ईगो तोड़ दिया? लो चाय पी लो बहन। आई एम सॉरी, मुझे इतना फिर से गिरना पड़ा, बट ये जरूरी था भाई। ईगो था ना भाई आपका, वो टूटना बहुत जरूरी था। भाई जब मुस्कान कार्य की बात आती, इसको 2 चीजों के अलावा और कुछ नहीं बोलता ये मुस्कान कार्य के ऊपर, सिर्फ ये करेगा और 45 लाख 45 लाख 45 लाख 45 लाख रुपए आते किसको बुरे लगते हैं? 20 लाख आ गए, 40 लाख और आ गए। क्या खुंदक है भाई तेरे को पैसों से उसके? तू प्लेसमेंट्स में भी बैठ पाया था, इसीलिए खुंदक खा रहा है क्या? और जो तू 45 लाख करे जा रहा है ना, उसका अगर दिमाग खराब हुआ, एक दिन उसने 45 लाख उठा के एक लॉयर को थमा दिया ना, तेरी गांड मार देंगे। लड़कों को मॉरल पॉलिसिंग कर रहे हैं कि नहीं खरीदो सब्सक्रिप्शन, हवस की पुजारी मत बनो, बट खुद की ऑडियंस जब मां बहन करने आ जाती है तो तुम्हारी मॉरल पॉलिसिंग मां चुदाने चली जाती है। चाय पीनी है, तू आ कतर है हिम्मत तो। आई डोंट थिंक यू कैन इवन अफोर्ड वन वे टिकट। इनफैक्ट एज अ सीनियर आई विल एडवाइस यू, इंस्टेड यूज दैट मनी, पे योर फीस फॉर द बैक पेपर्स, क्लियर योर पेपर्स, गेट योर डिग्री, दैट विल हेल्प यू लैंड अ जॉब। बिकॉज़ द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर मेकिंग, आई डोंट थिंक यू कैन गो फार विद दिस मैन। बंदर वाली ऑडियंस है भाई। हृदय भाई ने ये बोला, अब हम जाके यही सेम चीज बोलेंगे। हृदय भाई ने बोला मेरे नाम से व्यूज ले रहा है, मेरे कमेंट में वही सेम चीज बजना। फिर हृदय भाई ने बोला बाहर मिलो, आओ तुम्हें मर्दानगी दिखाती हैं, बाहर मिलो, उनकी ऑडियंस वही सेम चीज है, बाहर मिल लेना। स्टोरी क्या कर रहा है, बाहर मिल ले। ए यार, अबे यार, अपने क्रिएटर को जाके बोलो पहले जवाब तो दे दे, फिर मिल लूंगा। और फिर क्रिएटर आके बोलता है कि सुन भाई, मैंने किसी को नहीं बोला तेरे को जाके ये सब बोलने के। खैर इस पे बाद में आएंगे। अब बात करते हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी। जैसे उस बच्चे को रोस्ट करने, बुली करने के बाद उस बच्चे ने बोला कि भाई सीन तो नहीं हो जाएगा यार, मैं डर रहा हूं। कह रहा भाई वो तो तू सब देख ले अपना। भाई सेम चीज मेरे साथ, ठीक है। अगले दिन मैंने सुबह उठ के एक और स्टोरी डाली, स्क्रीनशॉट लगाया मैंने स्टोरी पे कि भाई देखो ये सब गालियां पड़ी है मेरे को, बट इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई। जिस पे जनाब मेरे को रिस्पॉन्ड करते हुए ये लिखते हैं, सुन मेरी बात, मैं जा के तो नहीं बोल रहा हूँ ना अपने फॉलोवर्स को कि लिखो ये सब, और मेरा तो ब्रॉडकास्ट चैनल भी नहीं है। तू अपने चैनल में लिटरली अपने बंदों को खुलेआम बोल रहा है कि कमेंट्स में ये कर दो वो कर दो। मैंने बोला अब मेरे रील के अंदर आप जाके कमेंट्स में भड़ास निकाल सकते हो, अगर आपको निकालनी है। उसके रील पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके अंदर पढ़ने की क्षमता होती सही से, तो आप ये भी देखते कि मैंने कितनी बार मना किया है ऑडियंस को एंगेज करने से, क्योंकि मुझे पता था आई एम सिंगल हैंडेडली इनफ, आई डोंट नीड एन ऑडियंस टू एंड यू ब्रो, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैंने कितनी बार बोला है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग विद ब्रेन डेड पीपल। और तुझे कमेंट्स में गालियां पड़ी हैं तो इधर आके मैन टू मैन बताना मुझे स्टोरी पे, फिर गाली देके ये सब। तो भाई जनाब आप जवाब देना। मैं आपके डीएम में आपको आके बोलूं देखो हृदय भाई आपकी ऑडियंस मुझे गाली दे रही है, बट हृदय भाई के मुंह पे जवाब नहीं है। मैं बस आपकी ये गंदगी बाहर निकालना चाह रहा था, मेरे को झाटा फर्क नहीं पड़ा आपकी ऑडियंस ने आके मुझे क्या बोला क्या नहीं बोला, ये पहली बार भी नहीं हुआ है मेरे साथ। इफ यू थिंक यू हैव डन समथिंग देन ब्रदर यू आर फकिंग डेलूजनल। अच्छा ये जनाब अपने इंस्टाग्राम पे ढिंडोरा क्या पीटते हैं, मुझे गालियां पसंद नहीं है, कोई मुझे दे, आई डोंट लाइक इट। मैंने भी 2-3 गालियां दी थी उनको, उन्हें अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है भाई, आपको गालियां सुनना पसंद नहीं है, आपको बोलना भी पसंद नहीं है, आई रिस्पेक्ट दैट बाउंड्री, बट प्लीज एक्सप्लेन मी दिस। स्टिल टेलिंग यू ये स्टोरी रील ऑडियंस इधर उधर कुछ नहीं होगा। मैंने अभी तक तुझे एक भी गाली नहीं दी अपने मुंह से, तू बहन चोद लगा पड़ा है, तू बहन चो, तू डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। कह रहा भाई मैंने गाली नहीं दी, सेम लाइन में गाली बकरा मेरे को। एक्सप्लेन दिस। आप बहुत डिंडोरा पीटते हो कि भाई गालियों से आपको नफरत है, मैं गाली नहीं देता, मैं अपनी ऑडियंस को सबसे अच्छे राह पे लेके जा रहा हूं। भाई अगर आप गालियां नहीं देते हो तो डीएम में क्यों बोल रहे हो? मैंने जब इस चीज को कॉल आउट किया, बोलते हैं बेंचोद इज लिटरली अ स्लैंग। गाली नहीं दी है ब्रदर मैंने। यू गॉट टू बी किडिंग मी मैन, आर यू फकिंग सीरियस राइट नाउ? मेरे भाई ये बकवास ना अपने तक रख। मे बी शायद तेरा दिमाग ऐसे काम करता होगा, बट अगर मेरी ऑडियंस जाके फालतू में ऐसे गंदी गालियां दे रही है ना बिलो द
बेल्ट जारी है, रेसिस्ट स्टोरी है, पूरी जिम्मेदारी मेरी पड़ती है ये। मैं जब पूरी तरीके से चढ़ गया था ना तेरे ऊपर, तब जाके तूने एक स्टोरी डाली थी अपने ऑडियंस को बोलते हुए कमेंट सेक्शन गंदा मत करो किसी का, वरना वो स्टोरी भी नहीं आती। मैटर ऑफ फैक्ट, लेट मी रीड अ रिप्लाई फ्रॉम माय डब्ल्यू ऑडियंस। परफेक्ट रिस्पॉन्स। जाके अगर नहीं भी बोल रहा अपने फॉलोवर्स को, तो भी तो वो लोग ये सब कर ही रहे हैं ना, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम। द वे एन ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू एनीथिंग ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट ऑल देयर क्रिएटर हैज नॉर्मलाइज्ड फॉर देम ओवर टाइम। एंड देन व्हेन यू कम इनटू माय डीएम्स एंड से शिट लाइक कि बहनचोद इज अ स्लैंग, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू नॉर्मलाइज दिस बिहेवियर फॉर योर fucking audience. Do I need to be more louder? For me, this was not about views or engagement. For me, this was about my loyalty to my people, to my platform, to myself. और अगर slang दे रहा है मेरे को, तो मेरे को ये बात बता, तू साइबाओ से कैसे offend हो गया? Shut your bitch ass up बोल दिया था मैंने रील के आखिर में, तो भाई offend हो गए। Though that is actually a slang. What? But बहनचोद बोल दिया मेरे को। भाई, there are levels to your stupidity, man. Levels. Now this is to some female influencers that came into my DMs trying to protect Mr. Hriday the influencer, the trending man. मेरे को आके लिख रहे हैं कि भाई you shouldn't fight with Hriday, whatever he's doing, you're looking at it from a wrong perspective. Nah, fam. If I wanted to, मैं तुम्हारा नाम उछाल सकता था, but you're a very small creator. But let me just say this, you are also a part of this problem. You defending this behavior is part of the problem. You know why? When you support this kind of behavior of creators like him, you are supporting harassment towards your own gender. You understand? And the word harassment gives PTSD to a lot of women. A lot of women. Start thinking with your own brain. Next time you wanna come with that bullcrap in my DMs, you be very careful. तू मेरे सामने भी आ जाएगा ना bro, तू मेरा झाटा नहीं उखाड़ सकता. I'm gonna be very clear to you, bro. And I'm not interested in meeting you or even talking to you, bro. I'm just disgusted by you overall. By you, your audience, the way you behave, the way you have zero accountability, and the way you fly on your numbers. It just disgusts me. रिलीजियस हेट दिया था ना तेरी ऑडियंस ने मुझे, अब तू एक अब्दुल का नाम हमेशा याद रखेगा। और ये भी याद रखियो भाई कि 4 लाख लोगों के लिए ना मैं फेवरेट मुल्ला आफ्टर ज़ैज़ ऐसे ही नहीं बनाऊं। देयर इज अ रीजन टू इट, समझ रहा है? फिर मेरे को वॉइस नोट भेज रहा है कि भाई आपने ब्रॉडकास्ट में शुरुआत करी थी, आपने मुझे झाटू बुलाया। अबे मैं ढिंडोरा पीट रहा हूँ क्या अपने इंस्टाग्राम पे या अपने सोशल्स पे कि भाई मैं गाली नहीं बकता? मैं तो शुरुआत से यूज कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस है ना। और मेरे को तू लगा झाटू, मैंने बोला झाटू, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा इंस्टाग्राम, मैं कुछ भी बोलूं, है ना भाई? याद आया? घंटी बजी, यही चीज बोली थी ना आपने। क्यों ऑफेंड हो जाते हो भाई जब आपको कोई कुछ बोलता है? फिर आप करो तो भाई वाह, आपको कोई कुछ बोल दे क्यों जाते हो जिम? कोई फायदा नहीं इतनी चमड़ी होने का। उधाड़ के रख दी मैंने विदाउट टचिंग यू। हाउ डज इट फील टू गेट इंटेलेक्चुअली मोलेस्टेड? यू ऑन द अदर हैंड एक्ट सो पायस ऑन योर सोशल मीडिया कि भाई मैं गाली यूज नहीं करता, डीएम में तो बेंचो चल रहा है। क्या बिलीव करे ऑडियंस? और भाई बात रही रिश्तेदारों की, तो आई थिंक उस हिसाब से तेरे को मेरे ऊपर रील बनानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि दैट आल्सो लुक्स प्रॉब्लमैटिक। और भाई तेरे रिश्तेदार तेरे कंटेंट को लेके कुछ नहीं कहते क्या कि बेटा क्यों बार-बार क्यों बनाए जा रहे हो इस पे? दुनिया भर की बकचोदी करवा लो, जवाब नहीं मिलना। रिश्तेदार कहां से आ गए इसमें? अभी तक तो मैन टू मैन हो रहा था। ले देख ले भाई, नहीं है मेरे शरीर में जान, मेरी शक्ल का मजाक उड़ाना, ले चश्मा भी हटा लिया, उड़ा ले मजाक भाई। फिर भी इतना गूदा रखता हूं ना अपने अंदर, सिंगल हैंडेडली तेरे को अकाउंटेबिलिटी सिखा दी, तुझसे सॉरी बुलवा दे तेरी ऑडियंस के सामने, 2 दिन के अंदर तेरी सारी हेकड़ी निकाल दी। मैं तो ट्रेंडिंग हूं ट्रेंड पे। पड़ गया यहां से लेके यहां तक थपाड़ा पड़ गया। आई विल ऑफर यू अ वेरी क्लीन वे आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, ओके? हियर मी आउट। तू मर्द बोलता है ना अपने आप को, ये करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तेरी मर्दानगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, apologize to that kid you bullied on the behalf of yourself and your friends. Secondly, apologize to all the female influencers that you have been bashing and harassing in the name of content. तीसरी चीज, hold yourself accountable for the shit your audience has given to me. I require accountability for the Islamophobic slurs, for the racial slurs, for the abusive language, for the body shaming. If you can do all of these things, मैं खुद से तेरे को DM करूंगा। But तू ये चीज ना पता कर नहीं पाएगा, तू इस लायक नहीं है। इस लायक बन जा पहले। Also, I'm really sorry for all the abusive language that I used against you and I crossed your boundary. I wanted to respect it, but neither did you, nor did your audience. So I think it's tit for tat because I believe in that. But see, it's not that hard to fucking apologize. Now, coming to the main part of this video. This is mainly for my audience. Rest of them can also watch. I mean, there is no issue. I hate commentary, bro. I hate this fucking genre. ये एक गंदा दलदल है, गंदी नाली है, ये दलदल कभी खत्म नहीं होगा. It's a fucking gutter. I hate criticizing, constructively criticizing, because nobody wants to fucking take, they don't want to learn. Nobody wants to learn. Everyone wants to strike a controversy and keep doing the same fuck commentary, man. It's the same shithole, वही format, वही template. 3 साल पहले भी I was dealing with the same bullshit. Fast forward to 3 years, I'm doing the same thing. I can't do this for the rest of my life, guys. I'm done. You guys as an audience, you don't realize this, but you are done with this kind of content. I can't be doing this for the rest of my life. Imagine if I had a girl right now, और उसको ये बहन के लौटे DMs में ऐसी बातें बोल रहे होते, जैसे मेरे को रिसीव हुई है पिछले 48 घंटों में. Just because she decided to be with me, this place is a shithole, bro. It drains you. ये सारी वीडियोस जैसे सुनील पाल, रवि ओपी शर्मा, भाई ये सारे टॉपिक्स पे तुम्हें 400 से 500 वीडियोस मिल जाएंगी YouTube इंडिया में भाई. But CBSE what the fuck जैसी वीडियो सिर्फ एक है. छतरी कू जैसा जोक पूरे YouTube इंडिया में सिर्फ एक है. Matter of fact पूरे YouTube पे
एक है हिम्मत तो कहीं और से निकाल के दिखा दो. I can guarantee you on this, bro. That was me, man. भाई I'm not lying to you when I say मैं ये सारी वीडियोस को बनाने में मेरे को 6 घंटे भी नहीं लगते हैं. From scripting to shooting to editing to uploading, everything within 6 hours. Yet I don't upload for weeks. Why? मैटर ऑफ फैक्ट ब्रो, मैटर ऑफ फैक्ट. मेरे को ये वीडियो बनाने में भी 16 घंटे से कम लगे हैं. ये नाली के कीड़े खत्म ही नहीं होते भाई. 3 साल पहले दफना दिया, फिर भी यही चलता रहेगा ब्रो. लेट्स गो बैक. लुक एट माय फेस मैन. मैं कितना खुश था भाई. मेरी एनर्जी अलग थी ब्रो. नूर था मेरी शक्ल पे ब्रो. आई जेन्युइनली मिस दिस गाय ब्रो. एंड हृदय, इफ यू आर वाचिंग इट टिल हियर, अगर तेरे अंदर कैपेबिलिटी है ना टू पीक इनटू योर फ्यूचर 3 years from now, you will understand what I'm trying to say. I was so happy bro. Whenever the YouTube scene needs me bro, I'm always here for my people bro. I will always be here on my chair. But please, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ commentary से bro. मुझसे नहीं होगा ये. I have given a huge part of my mental health to this shithole. I can't do this anymore. मेरे को अपने गाने बनाने, अपनी story time videos बनानी है. Those were golden bro. अगर आज के point पे वैसे views नहीं आ रहे जैसे पहले आ रहे थे ना, it has got to do something with my energy. तुम लोग भी उब चुके हो इस चीज से. The whole reason कि मैंने 2025 में सबसे ज्यादा time अपने music को दिया है, because I genuinely don't enjoy making this kind of content anymore. Constructive criticism my fucking ass bro. Everyone is just here to strike a controversy for views, for money. Content क्या मार चुदाने भाई. 2018 से बैंड के लौड़े लगे पड़े सेम फॉर्मेट लगा के. Nobody wants to take accountability. Nobody wants to be responsible for their own actions. But they're busy calling out the whole fucking world. खुद के ज़मीर पे झांकने की बात आती है तो हाथ खड़े हो जाते हैं. Can't man. I can't deal with such people anymore. Why this video was important was because I used poison to kill this fucking poison for once. I want to make my music and I want to make content that I enjoy making. If any of you have a problem with that, you guys can go and suck a dick. I don't care. And fuck your Islamophobia. Thank you for watching. Came out of the smoke, you can't see me, I hope. A trump card, ace of spades, time for you to fold. I'm taking what is yours, make sure you go broke. So you can go back, listen to the bullshit that you spoke, and come back to realize the fact that this was not a joke. Another sucker teaching other brothers to be woke. This motherfucker grew up watching Indian TV soaps. Another chuckle, I'ma shove the mic in your throat. Listen to me carefully, I don't really care to see. Honestly, I just want you to fall from the stairs for me. Seems to me that you have been scared of me, seems to have a possibility. I mean, it's great for me. Stop getting footed cause she really fucking cares for me. सबको पता है तेरी कितनी गंदी गैंड फटी. मेरे आने के बाद बिगड़ गई थी तेरी symphony. Thanks to me I cut your wings and locked you in a sanctuary, motherfucker. You don't even understand the bars that go hard when I bark them. I'm aiming for the stars in regards to the part where I'm gonna leave you scarred. Throw you off the charts, go and start from the start till you feel a shot of glass pierce through your fucking heart. You're the kind of product I would never add to cart. No spark can save your future from looking so dark. No off the rap game, my songs are my arc, motherfucker.